Everyone. This is my last video, and this is my last video on chapter 1, and it is about synopsis. What exactly do we mean by synopsis? Now, I always ask in my videos people, do you want treat or do you want a trick? And my answer to this is always that people love to have a trick, because treat you can have yourself. So I'm giving you a trick, and that will be a treat for you. Starting with all the acronyms of the complete chapter 1, we will not be taking out here history of business or commerce right now. That will be doing it after we finish off the synopsis, because first you must know the basic concept of business. History involves particularly learning, so that part of the chapter we'll be doing just by PDF and understanding. There is not much of explanation out there. So starting with the first trick first, that is, what is the definition of business? Business is termed as an occupation which includes production, procurement of goods and services, of course at a profit. Now, when you talk about the concept of management, we start with definition 1. Definition 1 includes occupation wali definition. Then economic activities, which talk about livelihood. Okay, then non-economic activities, which are non-economic activities are out of love, sympathy. Okay, you must know this. And conclusion definition is definition of a business. Business is an economic activity which includes sale, exchange, production, procurement of goods and services to complete the human needs. So two things which you need out here is, one is economic activities must be added out here, and the other word is the needs of human. So human needs. And conclusion, what does it say? Conclusion says that business concept talks about economic, non-economic activities. It talks about being occupation. It talks about being the economic activity, and it talks about the human needs. Concept of business, once it gets over, next we come to is features. When I did the topic features, I did not give you any kind of acronym, so I'm giving it to you right now. It's D, deep, D-E-E-P, deep, R square R, R square S, sorry. Now, what is D? D is dealing in goods and services on a regular basis. What is E? E is for your economic activity. Second, E is for earning profit. P is production, procurement of goods and services. R as in uncertainty of return. The other R is risk, and S is sale, exchange of goods and services. We've already dealt with all the complete explanation of the topic. I'll just repeat once again. D as in dealing in goods and services on regular basis, ये आना ज़रूरी है. E is economic activity, दूसरा E is earning profit का E. P is production procurement, इसका हमने दोनों ले लिया. R का uncertainty of return का R. दूसरा R क्या है? रिस्क है. एंड लास्ट S is सेल एक्सचेंज का हमने सेल ले लिया. डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस मतलब कि बिजनेस जो है वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइवलीहुड के लिए है. अर्निंग प्रॉफिट, यूराइज हमने शॉर्ट फॉर्म किया हुआ है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हम ये करते हैं. प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चर करना या ट्रेडिंग गुड्स लेकर आना, रेडीमेड गुड्स लेकर आना. Uncertainty of return, we are not sure that whether we are going to incur losses or we will have profits because of the uncertainties. Risk, there is always an uncertain element which takes us to either loss or profit. Difference between uncertainty of return and risk. Uncertainty of return में हमें inadequate knowledge होती है कि क्या होने वाला है. रिस्क में हमें ये होता है कि हमें ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. देन सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब गुड्स को बेचना और उसके एवज में कुछ लेकर आना. अगर मैं आई एम अ शेफ़ बाय प्रोफेशन और मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर कुकिंग करती हूँ और उसके मुझे पैसे मिलते हैं, तो वो मेरा सेल एक्सचेंज है. लेकिन वही कुकिंग मैं अगर घर में करती हूँ तो सेल एक्सचेंज नहीं होता. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिनॉप्सिस इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का मैंने एक्रोनिम आपको दिया था. हमने इसमें लिखा था VIQ, R स्क्वायर आइस. वी में W लिया था. W मतलब नेचर ऑफ वर्क, कि आप क्या काम करते हैं. तो नेचर ऑफ वर्क में हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या बोलता कि बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट. प्रोफेशन में हम क्या है, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जिस चीज़ के लिए जिस एम्प्लॉयमेंट सर्विस में हम चूज़ किए गए वहाँ पर उसके हिसाब से काम करते हैं जिसमें हमारी स्किल है. ई, मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट, हमें बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योर का डिसीजन चाहिए होता है. प्रोफेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हमें प्रोफेशनल एसोसिएशन की परमिशन चाहिए होती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है. एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है.
आई इन्वेस्टमेंट, हम जब बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो बिजनेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है, प्रोफेशन में कम होती है, एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं होती। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बिजनेस में क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती, प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट में एज पर द एम्प्लॉयर, आप जिस तरह का जॉब करें वैसे ही आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। रिस्क सबसे ज़्यादा बिजनेस में होता है बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। आपको जॉब है तो आपको उसके पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है रिवॉर्ड, आपको बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको फ़ी मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको वेजेस या सैलरीज मिलती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस आप अपना किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रोफेशन में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ये 100% बात नहीं है, और आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते जब तक कि वो सेम क्वालिफिकेशन ना लेकर आए। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, यू कांट ट्रांसफ़र योर वर्क और योर जॉब टू योर एनी काइंड ऑफ योर एयर अनटिल अनलेस वो उस चीज़ के लिए क्वालिफाइड नहीं है और उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। कोड ऑफ कंडक्ट, बिहेवियर पैटर्न, मतलब बिजनेस में कोई बिहेवियर पैटर्न नहीं होता, मैनेजर्स अपने हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पर बिहेवियर पैटर्न जो होता है एज पर द प्रोफेशनल बॉडी होता है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी का कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस वापस ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट में एज पर द एम्प्लॉयर देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट, जो एम्प्लॉयर कहता है आपको वैसे ही बिहेव करना पड़ता है। ई एज एन एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने की थी बिजनेस की बात तो शॉप्स एट्सेट्रा, प्रोफेशन की बात की थी तो लॉयर एट्सेट्रा, एम्प्लॉयमेंट की बात की थी तो वर्किंग इन अ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट वी कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री जो है प्रोसेसिंग करती है ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स इज इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच हेल्प इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम, पर्सन थ्रू ट्रेड, प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, टाइम थ्रू स्टोरेज। Now when we talk about industry, इंडस्ट्री तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी को मैंने आपका शॉर्ट फॉर्म दिया था पैग, और सेकेंडरी को SMC, और हमने टर्शरी के लिए लिखा था टिब्बा। प्राइमरी का मतलब क्या है, जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, इसको उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या हम जेनेटिकली इनको रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, जो हमने प्राइमरी में रिसोर्सेज लिए उनको उनका फॉर्म हम चेंज करते हैं। जब उनका फॉर्म चेंज करते हैं तो हम उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि हम फॉर्म में यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। और जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम इमूवेबल गुड्स में डील करते हैं। जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये 4th तरह की होती है। इसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया था पास, P as in processing, A as in analytical, दूसरी A as in assembling, S as in synthetical। सो ये 4 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर। हम अगर बात करें असेंबलिंग इंडस्ट्री की, तो हमने एग्जांपल लिया था असेंबलिंग इंडस्ट्री में टीवी, कार एक्सेट्रा। अगर हम बात करें एनालिटिकल इंडस्ट्री की, तो हमने बताया था कि एनालाइज करते हैं ये ऑयल रिफाइनरी। और अगर हम बात करें सिंथेटिकल इंडस्ट्री की, तो हमने बात करी थी सीमेंट की। तो ये चारों एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, कंस्ट्रक्शन के। उसके बाद आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर है टिब्बा। टर्शरी मतलब कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी को। टर्शरी में आता है ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। इंश्योरेंस आए, इंश्योरेंस हम कहाँ से लेते हैं, इंश्योरेंस इज अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विच वी, और इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, it's an agreement in writing which you take from the insurance company. The person who takes the contract gets his risk compensated by paying a small amount called premium। थोड़ा सा पैसा देकर वो अपने रिस्क को कवर करता है। देन बैंकिंग में आता है कि हमको जो फाइनेंस या फंड्स चाहिए होते हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो चाहे वो फिक्स कैपिटल के लिए हो। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है स्टोरेज, और एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है। प्रमोशन का मतलब आप ऑफर्स देते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह एक्सेट्रा। Now, after that we come to commerce. Commerce is classified into trade and aids to trade. Trade का मतलब क्या होता है, it refers to sale exchange of goods and services। ये एट प्रॉफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एट प्रॉफिट इसमें हम इसलिए ऐड नहीं करते क्योंकि कई बार क्या होता है, जो ट्रेड हम करते हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और पेमेंट्स के लिए करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं ट्रेड। और दूसरी चीज़ ये कि हमने यहाँ से भी बताया था कि इट रिमूव कॉमर्स जो है इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेज ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम। तो जो पर्सन का जो हिंड्रेंस रिमूव करता है वो कौन करता है, ट्रेड। तो बेसिकली ट्रेड जो है पर्सन के हिंड्रेंसेस को रिमूव करने के लिए, ना कि खाली प्रॉफिट कमाने के लिए। खाली प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, ठीक है। ट्रेड 2 तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है, एक्सटर्नल आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है। और आगे इंटरनल 2 तरह का होता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में हम बल्क में बाय करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट लाइन बाय करते हैं। रिटेल ट्रेड में हम क्वांटिटीज़ बाय करते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स बाय करते हैं, पर वो कंपैरेटिवली होलसेल से क्या होती है,
कम होती है. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड में 3 चीज़ें होती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटीपोर्ट. इंपोर्ट मतलब क्या करना, आप बाहर से गुड्स खरीद रहे हैं तो इंपोर्ट हो रहा है, आप बाहर बेच रहे हैं तो इट्स एक्सपोर्टिंग. सो बाइंग फ्रॉम अब्रॉड इज इंपोर्टिंग, सेलिंग अब्रॉड इज एक्सपोर्टिंग, एंड व्हेन यू इंपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ exporting, it is known as entry port. So once we've done with this complete synopsis, next we come to the role of profit. What do we mean by role of profit? Profit क्या होती है? It is एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. और प्रॉफिट हम दो तरह से बढ़ा सकते हैं, एक हम अपने सेल्स को बढ़ा दें और दूसरा हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दें. रोल ऑफ प्रॉफिट में मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है. ये एक्रोनिम क्या कहता है? यू राइज, यू फॉर यूटिलिटी, आर फॉर रेपुटेशन, आई फॉर इनकम, एस फॉर सर्वाइवल, ई फॉर एफिशिएंसी. हमारे पास अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, वी नीड प्रॉफिट इज एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट द यूटिलिटी, दैट हाउ यूजफुल योर प्रोडक्ट्स आर एंड हाउ दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. व्हेन यू टॉक अबाउट रेपुटेशन, इफ यू आर अर्निंग गुड प्रॉफिट, you earn the reputation in the market. When you're talking about income, it's a source of income for you. When you're talking about survival, for long term growth of the business and for survival, you need to earn profit, otherwise you will not be able to reinvest. And when you talk about efficiency, when you in less cost, when you produce more and you sell more and you earn more profit, profit is the criteria. So this is what is all role of profit is all about. Next we talk about is objective. Objectives are end results. I have already given you this definition. These are the end results where I talked about the bundi ka laddu. So I told you that objectives are of two types. One is social objective and the other is economic objective. First we'll do the economic objective. Economic objective is market standing. Market standing का मतलब क्या होता है कि market standing में हमें दो लोगों के बारे में ध्यान रखना है, एक अपने competitor और एक customer. We have to keep an eye on our competitor so that it does not take away our customer, it does not take our customer away. Market standing. Then we talk about I as in innovation. Innovation का मतलब क्या होता है? Innovation means something new, new idea or new method. Innovation is in two ways it is done. Innovation is done in two ways. How? One, innovation of product, the other innovation of skill. Innovation of product मैंने आपको बताया था कि आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसमें आप पीसी से आप गए लैपटॉप पे, लैपटॉप से लोग आजकल पाम टॉप यूज़ कर रहे हैं. जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं वो इतने savvy हो गए कि they are like palm tops only. And then from talking about in skills, I gave you example of sports person or how the training is being done. People are teaching tabata, people are teaching zumba and many other types of training. So skill various types हो गई है. Then we talk about D. D is for the development of the managers. When you talk about development of the managers, we are talking about how we are going to give them the motivation programs. So we talk about development of who? Managers. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स की इसलिए कि वी आर गोइंग टू मोटिवेट देम एंड वी आर गोइंग टू एनकरेज देम टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी. ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मैनेजर्स को मोटिवेट करे ताकि वो 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करें. आर एज इन रिसोर्सेज. हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मैन, मनी, मटीरियल, ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तीनों को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज efficiency is actually measured how well you use your resources. So R as in resources. Again A as in attitude of workers. जब हम बात करते हैं attitude of workers, तो ये workers का attitude कैसा होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए. तभी होता है जब आप अपने वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, आप वर्कर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अनदर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इट. Then we talk about two other things also. We are talking about productivity. हम बात कर रहे हैं productivity. Productivity का मतलब क्या है? It is a relationship between input and output. तो आप कितना आउटपुट निकाल रहे हैं इनपुट के साथ. अगेन दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ योर एफिशिएंसी. जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना बिजनेस बेटर करेगा. दूसरा पी इज फॉर प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग अगेन हम जब बात करते हैं प्रॉफिट की, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेम थिंग, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. और मैंने अभी आपको यूराइज कराया है. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. Then next we talk about is social responsibility. This is one of your social objective. So how many social objective you have? One, you have development of managers. Second, you have attitude of people. And third, you have social responsibility. So next we come to the social responsibility. What do we mean by social responsibility? Social responsibility is obligation, a social obligation of the business towards the society. Like for example, when business talks about giving employment opportunities to disabled people, or it provides right kind of goods at good quality products at reasonable price, so they are adhering to the social responsibility. So once again we'll just talk about it. Objectives, mid wrap P square SR, where development of managers and attitude of workers and social responsibility are social objective, and rest are all your economic objectives. I've just done a little bit of job. I've erased this part of the board. We are not doing the previous topic. Now we are doing business risk.
व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क जो होती है हमारी अनसर्टनिटीज़ होती है, हमें पता नहीं है कि हमें, या हम कह सकते हैं इनएडिक्वेट अनसर्टन कंडीशंस के, हमें यही नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. सो व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस रिस्क वी आर नॉट वेरी श्योर. अनसर्टन कंडीशंस हैं, प्रॉफिट होगा लॉस होगा इसके बारे में नहीं पता, इनएडिक्वेसीज है. इस डेफिनेशन के बाद रिस्क जो होता है दो तरह का होता है. वन इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क, द अदर इज प्योर रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क टॉक्स अबाउट आइदर वी आर गोइंग टू इनकर लॉसेज और वी आर गोइंग टू हैव गेन. अगर कोई रिस्क हो जाता है तो उसकी वजह से या तो हमें प्रॉफिट होगा या गेन, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. लेकिन प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो लॉस होगा या देयर वुड बी नो लॉस. वी वोंट हैव एनी गेन बट देयर वुड बी नो लॉस. Then apart from the risks we have causes of business risk, जिसके लिए I've used acronym as NOHF. So I call it NOF. What is NOF? N is for natural risk, H is for human risk, F is for financial risk, and O is for others. So we have made an acronym called NOF, NOHF. Right. So human risks are which risks which are pertaining to human beings, like dishonesty, embezzlement. When you talk about natural risks, natural calamities, flood, earthquake. Financial risk, change in demand of the product, that could be because of interest rates being high on the loan, etc. And other risks are, like I gave you example of bursting of a boiler or any other kind of unforeseen circumstances. So next we talk about is nature. Nature, you have an acronym called URSP. U is uncertainty. So we talk about uncertainty. How do we say? We say business risk is based on uncertainty. Uncertainties है तो हमने इसको uncertainty word ले लिया यहाँ पर. Then risk के बारे में, तो risk is an essential part of business. business में से हम risk eliminate नहीं कर सकते, उसको कम कर सकते, minimize कर सकते, we cannot eliminate it. Then risk depends upon the size, nature. So size large scale business का ज़्यादा risk होगा और small scale का कम होगा. nature of business manufacturing या trading है. So manufacturing and trading में हम ये बात करते हैं कि manufacturing में ज़्यादा risk होगा, trading में कम. और मैं एक बात करती हूँ डिग्री की भी यहाँ पर. So when I talk about degree or type of fashion, the type of business you have, degree या type of business you have. So like in this type of business you can talk about fashion industry, वहाँ पर risk ज़्यादा होता है in comparison to daily consumable items like toiletries or stationery, जिसमें risk कम होता है. And last we talk about is profit. There's an old age principle. So profit is reward for risk taking. आप जितना risk लेंगे उतना ज़्यादा profit earn करेंगे. This completes your synopsis of chapter 1. We have not yet taken, I'm repeating it, we have not taken up the history of trade and commerce as yet. That we'll do later on. This is the basis and basic of foundation of business. What is business? So until unless you know the concept and the basis, you cannot switch over to history. That we'll be talking about in the next video. For now, bye bye, sayonara, take care, stay home, stay safe, stay healthy.